السلام علیکم، میں ہوں طارق مسعود علی۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ پاکستانی قوم آج کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منا رہی ہے۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، دنیا بھر میں مقیم کشمیری یک زبان۔ 5 فروری مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد وفا کا دن۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کی طویل داستان۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارت نے ہر حربہ آزمایا۔ معصوم نہتے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ 1989 سے اب تک 96,000 سے زائد کشمیری شہید کیے جا چکے۔ 7,411 کشمیری نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1,80,000 سے زائد کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 11,269 خواتین کو بھارتی قابض فوج کے درندوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 1,08,000 سے زائد معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ 22,991 خواتین کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ 1,10,562 مکانات تباہ کر دیے گئے۔ 5 اگست 2019 کو غاصب بھارت نے کشمیریوں کے آئینی حقوق پر شب خون مارا۔ ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ تمام تر مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل نہ سکا۔ مظلوم کشمیری مشکل ترین حالات میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام تحریک آزادی میں تنہا نہیں، پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے آزادی، جمہوریت اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزادی کی منزل حاصل کر کے دم لیں گے۔ اور یوم یکجہتی کشمیر پر قومی قیادت بھی ایک پیج پر ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ نے خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے اور ہر عالمی فورم پر ان کی آواز بنتا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، یہ دن کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقبوضہ کشمیری خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستانی قوم کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، مقبوضہ کشمیر جبری سیاسی نظر بندیوں اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جبکہ پاکستان اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کی بھرپور وکالت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کشمیری عوام کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا، سندھ حکومت کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کوس کو نئی صفاتی قوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہر پاکستانی دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ انہوں نے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی مظلوم کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ کہا، بھارتی ہتھ کنڈے ناکام رہے، بلوچستان کے عوام جدوجہد آزادی کشمیر کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خطے کے دیرپا امن کے لیے دیرینہ مسئلے کا حل ضروری ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں بڑا عوامی جلسہ جاری ہے۔ شرکا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال کیسی ہے؟ مظفر آباد سے بیورو چیف بشارت مغل جوائن کریں، ان سے بات کریں گے۔ بشارت، بتائیے گا۔ کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد ریاست بھر کے 10 اضلاع کے اندر اس وقت جلسے، جلوس، ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد ڈویژن، میرپور ڈویژن، پنچ ڈویژن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو کشمیری ہیں اس وقت سڑکوں پہ ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور بالکل میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس میں بچے، بوڑھے، نوجوان
स्कूल कॉलेज के तलबा तलबात की एक बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त जो शुरकाए जलसा हैं वो आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर भर में इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जा रही हैं। इस मौके पे जो पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि वो कश्मीरियों की पुश्त पे और इस वक्त कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम और पाकिस्तान की अवाम मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार उन कश्मीरियों को ये यकीन दिला रहे हैं कि आज़ादी की इस जंग में हम आपके साथ हैं। हमारी जदोजहद आप लोगों के लिए उस वक्त तक जारी और सारी रहेगी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आपको आपका बुनियादी हक हक आज़ादी नहीं मिल जाता। इस मौके पर मुजाहिरीन आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म और जबर का ठीक है बशारत, नोटिस बहुत लिया शुक्रिया जाए। आपका। कश्मीर भारत का था ना कभी हो सकता है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नौशदा दीवार है। भारत जितनी जल्दी इस बात को तस्लीम कर ले उसके लिए अच्छा होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की यौम यकजहती कश्मीर पर बोल से बातचीत। कहा कि आज़ाद कश्मीर वाले मकबूजा वादी के मकीनों के साथ हैं। आज़ादी की जिद्दोजहद में मकबूजा वादी वालों को भी कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम यकजहती मनाती है और आज इस पंडाल के अंदर हजारों का ये मजमा इस बात की दलील है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर से रिश्ता है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी व कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। पाकिस्तान के फाकिर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाले जितने भी पुल हैं उन पर खड़े होकर हाथ की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का पैगाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक यौम कश्मीर के मौके पर सक्खर में ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली रैली का अहवाल बताएंगे। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? यौम यकजहती कश्मीर पूरे मुल्क के अवाम आज एक आवाज़ है कि भारत जो मकबूजा कश्मीर में अवाम के साथ जुल्म ढा रहा है उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। पाकिस्तानी अवाम जो है सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है भारतीय हुकूमत और उसकी फ़ौज के ज़ालमाना रवैये के ख़िलाफ़। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया सक्खर की जानिब से रैली निकाली गई है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शामिल हैं। बात कर लेते हैं, रैली को लीड कर रही हैं ADC सक्खर बुशा साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या पैगाम देंगी? आज के दिन जो है वो बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। इस रैली का मकसद कश्मीर की जो मजलूम आवाम है उनके साथ यकजहती का इजहार करना और वहाँ पे जो इंडियन ऑपरेशन हो रही है, भारतीय जारियत वहाँ पे चल जा रही है जिससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसको कंडेम करता है। तो आज के दिन जो पूरे पाकिस्तान में ये रैलीज़ का इनेकाद किया गया है, उसी तरह सक्खर की आवाम भी जो है वो एक पुरजोश तरीके से ये पैगाम देना चाहती हैं कि पाकिस्तानी आवाम कश्मीरी आवाम के साथ है। पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में भी भरपूर अंदाज से रैली निकाली गई है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अली। और यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा ने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया है। यादगार शौदा पर हाज़िरी दी गई, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की गई है। तलबा और असातिज़ा ने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हरदम साथ रहेंगे। आपको बता दें कि यौम यकजहती कश्मीर इस मौके पर बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा की जानिब से भी मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया गया है। वहाँ पर मौजूद जो यादगार शौदा हैं उन पर हाज़िरी दी गई है, फातिहा ख़्वानी की गई है। इसके अलावा वहाँ पर फूल भी रखे गए हैं। खुद बताया है, अपने टीचर्स से उस्तादों से ये सुना था कि कश्मीर है, इसके शहादा हैं, इसके पीछे दी गई कुर्बानियाँ हैं, बट यहाँ जाके वो सब एक प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जान रहे हैं यहाँ के शहादा को। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि फितनाउल हिंदुस्तान के 200 से 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बलूचिस्तान में बदअमनी की साजिश नाकाम बनाई गई। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में जाम शहादत नौश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों को दो टोक पैगाम दे दिया। कोयटा आमद पर कहा कि हम दुश्मनों पर ज़मीन तंग कर देंगे। दहशतगर्द हो या उनके सहूलतकार, कोई नहीं बचेगा। शहरियों पर वार करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। किसी भी जवाज़ के तहत खून खराबा कबूल नहीं करेंगे।
फील्ड मार्शल ने शहरियों को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी। दहशत गर्दी के खिलाफ आईनी दीवार बनने वालों का हौसला भी बढ़ाया। सूरत हाल का जायजा लेने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्वेटा पहुंचे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों, फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल और फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाने की मालूमात फराहम की गईं। ब्रीफिंग में बलूचिस्तान में अमन तरक्की को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाने और रियासती रेट को मजबूत करने और अवाम और तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी बुनियाद पर तशद्दुद या दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH क्वेटा का दौरा भी किया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान, पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात की और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। उधर पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से खलदम BLA पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और सफाक दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते BLA ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए जिनमें मासूम शहरियों को शहीद किया गया। Last few years, really after the Taliban takeover in Kabul, externally sponsored and foreign-funded proxy terrorist groups such as Fitna al-Khawarij TTP and Fitna al-Hindustan BLA and its Majid Brigade have got a new lease of life. Operating with virtual impunity from the Afghan soil and with the active support of our eastern neighbor, these groups are responsible for heinous terrorist attacks inside Pakistan. Just this weekend, BLA claimed responsibility for a series of terrorist attacks across multiple locations in the Balochistan province of Pakistan that resulted in the martyrdom of 48 innocent civilians, including 5 women and 3 children. 145 BLA terrorists were neutralized during the effective riposte by our valiant security forces. We hope the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime, acceding to the listing request. लाहौर बसंत के रंग में रंगने के लिए तैयार है। शहरी रंग बिरंगी पतंगों और डोर की पुरजोश अंदाज में खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, अहलियान लाहौर जो हैं बसंत के रंग में रंग चुके हैं। शहरी पतंगे और डोर ख़रीदने के लिए लाहौर के मोची गेट का रुख कर चुके हैं। यहाँ पे मरकज़ी जो मार्केट है वहाँ पे पतंगे और डोरें जो हैं वो बड़े पुरजोश अंदाज से रंग बिरंगी पतंगे ख़रीद रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आप ये बताएं जी कि ये कितनी पतंगें ली हैं और किस तरह आप बसंत को मनाएंगे? हम स्पेशल इस्लामाबाद से आए हैं। पहले यहाँ पर तकरीबन 25 साल पहले जब अलाउ थी बसंत तो उस टाइम आते थे हम मनाने के लिए। आज दोबारा आए हैं। आज ही हम अभी आए हैं, तकरीबन 325 के हिसाब से मिले, 40 पतंगें मिली हैं। अभी डोर ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी मिल जाए। अच्छा, आप बताएं जी कि कौन सी रंग की जो है आपने पतंग ख़रीदी है? डोर के बगैर ही उड़ाने का तजर्बा करना चाहिए। डोर लेंगे, क्यों नहीं लेनी, डोर वगैरह लेंगे, सारा प्रोटोकॉल करेंगे, पर वो डोर बहुत महंगी है, अभी मिल नहीं रही, अभी वो डोर लेनी है हमने। मैडम ठीक है, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।